Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. Today this is last session for the subject verb agreement, and here you'll know some more rules of this particular topic, rules for this particular topic. Like first is either, neither, each, everyone, everybody, each one, no one, someone, etc. Now many of the students say, ma'am, in previous video you told that we will use singular or plural helping verb with respect to the latter subject, either or case or neither nor case. Okay, so here what am I telling you? If the word is used either, not either or, neither, not neither nor. Okay, so this is basically very important rule which you should keep into your mind, that whenever these kinds of subjects are there, you always use singular verb. Why I write none as a special case? Because in some cases you take none as singular when it is indicating singular subject, but many of the grammarians, you know, has emphasized one thing, like it is not necessary to use singular helping verb always with this particular subject. You can use singular as well as plural. So it is acceptable in none case. Okay, some grammarians prefer singular helping verb with none and some plural. So there is nothing hard and there is no hard and fast rule regarding this particular thing. Yes, but when it indicates a singular subject specifically, then you have to use singular helping verb. Let's take some example. Either, neither. Okay, she does not care what either of her parents dash says or say. दोनों में से कोई भी पेरेंट क्या कहता है क्या नहीं उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर अगर आप प्लूरल में जाएंगे तो आपको से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. अगर आप सिंगुलर में जाते हैं तो डज प्लस से हो जाएगा, दैट इज सेज. ओके, सो शी डज नॉट केयर वॉट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स. तो आपने देखा आइदर के साथ आपने क्या यूज़ करना है, आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, दैट मीन्स डज प्लस से, दैट इज सेज. Let's take another example. Neither of these two students dash done well. So यहाँ पर has लगाएं या have लगाएं. आप देखोगे two students हैं तो ये तो plural है मैम, लेकिन neither आ गया तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, क्योंकि हम neither nor तो लगा नहीं रहे, यहाँ we will always use singular helping verb. Okay. If I take example of none, suppose none refers to quantity, like none of the work was done. तो यहाँ हमने वॉज लगाया, वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है. आप जब क्वांटिटी की बात कर रहे हो या अमाउंट की बात कर रहे हो तो आप उसके साथ क्या लिख रहे हो, नन ऑफ द वर्क वॉज डन. वहीं अगर नन फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है तो नन ऑफ द मूवीज हैव बीन रिलीज सो फार. सो ये एक प्लूरल सेंस को इंडिकेट कर रहा है. अब यहाँ पर आप जैसे मैंने बोला नन ऑफ द मूवीज हैव बीन रिलीज, तो यहाँ हैज़ और हैव दोनों एक्सेप्टेबल हैं. मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बहुत सारे ग्रामेरियन हैव को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें आप जो हम रिसीव प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश करते हैं, आरपी प्रोनाउंसिएशन, उसके हिसाब से आप दोनों इसको यूज़ कर सकते हो. राइट. अब बात करें अगर, तो एवरीवन, ईच, एवरीबॉडी, ईच वन, इसी हिसाब से आपका चलेगा. इसमें कोई प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली नहीं है. लाइक एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन क्वेश्चन, हैज़ और हैव. Everyone in the family has been questioned. Okay. Now, if there are some subjects like much, more, little, less, then we always use singular helping verb with them. If more is written like this, more than one, we will go for singular helping verb. If it is written like more persons than one received Nobel Prize, then we will use this plural helping verb. Okay, so if we add one particular subject that is plural with more, then we will use plural helping verb. Otherwise you will go with this, that singular helping verb is used there. If I talk about many, this is a very common error which many students do,
मैनी मैनी जनरली बच्चे क्या समझ लेते हैं कि मैनी प्लूरल को इंडिकेट करता है, बट जब मैनी के साथ अ लग जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि मैनी अ फ्लावर फेड्स अवे अनसीन। अब यहाँ मैंने फेड क्यों नहीं लगाया, मैंने फेड्स क्यों लगाया? फेड्स इज डज प्लस फेड, तो मैंने फेड्स क्यों चूज किया? क्योंकि मैनी अ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। वहीं इन कॉन्ट्रेरी टू दैट व्हेनेवर वी फाइंड मेजॉरिटी ऑफ, देन वी विल ऑलवेज गो फॉर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव, नॉट हैज। ओके, सो ये आपको रूल का बच्चे मेमोराइज करना पड़ेगा। 2-3 बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, आप लिख सकते हो एक बार अपने हाथ से। जो रूल्स हैं ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट रूल्स फॉर द ग्रामर इन एवरी लैंग्वेज, यू नो वॉट एवर लैंग्वेज यू चूज टू लर्न, सो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दीज सेंटेंसेज लाइक जिसमें भी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है, वन ऑफ द, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ पेयर ऑफ, ऐसा कोई अगर फ्रेज बनता है यू विल ऑलवेज गो विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अगर वो चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल हैं तो, ठीक है। और अगर वो काउंटेबल हैं तो आप उसमें क्या लिखते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके, देखो अ लॉट ऑफ टाइम अनकाउंटेबल है, डैश स्पेंट ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज। अ लॉट ऑफ टाइम डैश स्पेंट ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज। सो ये आपका, अगर मुझे वॉज वर्ब में से लगाना है तो आप यूज करोगे वॉज। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ प्लेंटी ऑफ हेल्प, इज और आर इज अवेलेबल, सो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल था। अगर मैं ये बात करती हूँ कि लॉट्स ऑफ पीपल डैश टेकिंग पार्ट इन द मैराथन, सो ये काउंटेबल हैं, इसलिए हम इनके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। आई होप काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा कि काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जितने भी आपके नंबर्स वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल वो है जो आपका कौन सा नाउन आता है जनरली, आप इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो वो अनकाउंटेबल होते हैं, सो उनके साथ आप यूज़ करेंगे। ऐसी मेजॉरिटी ऑफ वायलेशंस वर ऑफ अ माइनर नेचर, तो यहाँ पे वायलेशंस जो है मेजॉरिटी ऑफ वैसे ही है आपके, इसमें आपने यूज़ किया हुआ, लेकिन इसके बाद आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। देन कम्स नेम एंड ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जो देखने में लगता है प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ही एस है बट आप उसको मैथमेटिक्स आर नहीं बोलोगे, ठीक है। जब एक सब्जेक्ट की तरह आप बात करोगे तो मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग ब्रांच, तो ये आप मैथमेटिक्स उसके लिए यूज़ करोगे। लेकिन अगर यही मान लो आपने इसका अगर कुछ डिफरेंट यूज़ करना है, जैसे कि द मैथमेटिक्स ऑफ द सिचुएशन डू नॉट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ मैंने मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ किया कि एक तरह का सब्जेक्ट है, मैंने कैलकुलेशंस के तौर पे जो सिनोनिम यूज़ किया वो मैथमेटिक्स किया, वहाँ पर आप इसको आर कर दोगे बजाय इज के, राइट। ये थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मीज़ल्स है, बिलियर्ड्स है, मीज़ल्स डिजीज़ का नाम है, बिलियर्ड्स आपका स्पोर्ट्स का नेम है। अब एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ कर जाओगे, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही यूज़ करोगे, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हो, या स्कूल के लिए आप 9th-10th के लिए या 11th के लिए आप एडिटिंग ओमिशन करने जा रहे हो, या 12th में भी आप कुछ लिखने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली कई बच्चे मुझे यहाँ पर कहते हैं कि मैम आप 12th का लेक्चर डालो, आप ये क्यों नहीं। तो बेटा दीज आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच यू रिक्वायर a lot while sharpening your writing skills, okay? So इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये असेस होते हैं टिल 11th, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके 12th में असेस होते हैं, आपके लिखने में क्या एरर होती है। ऐसे ही जो नेम्स हैं आपकी कंट्री या बुक के, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ आवर लाइफ, अगर आप इसमें मिस्टेक्स प्लूरल लिख रहे हो तो आप अगर इस बुक के नाम के आगे आप 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ आर ऐसा नहीं कर सकते, इज़ अ गुड बुक और इज़ द वर्स्ट बुक, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको इज़ लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ही कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
अगर स्टेट्स आ रहा है इसमें तो ये नहीं कि आप इसके साथ एस आर यूज़ कर जाओगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिखते वक्त गलती करते हैं कई बार बच्चे। ऐसे ही जो नाउन सिंगुलर होती हैं फॉर्म में लेकिन प्लूरल होती हैं मीनिंग में, ठीक है, जैसे आपके जितने भी क्लास वो आ जाते हैं, सॉरी पीपल, कैटल, इस तरह की जो नाउन्स आ जाती हैं वो आप उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल जो है ग्रुप ऑफ शीप्स है, उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है। तो आप या फिर कोई भी जो फार्म ग्रेजिंग एनिमल होते हैं उनके लिए यूज़ हो रहा है, तो आप कैटल है तो सिंगुलर लेकिन ये मीनिंग प्लूरल है। ऐसे ही पीपल के लिए आप यूज़ करोगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा। सिमिलरली बेटा जो हमारा क्लास नाउन्स होते हैं जैसे कि फर्नीचर हो गया, फूड हो गया, जो एक पर्टिकुलर क्लास को इंडिकेट करते हैं और जिनका प्लूरल कुछ भी नहीं होता है, तो वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, फूड वॉज गुड एंड अफोर्डेबल। फूड आर नहीं बोलोगे, जबकि फूड में आपको बहुत सारे मील्स मिल रहे हैं। मील्स यूज़ करोगे तो आप प्लूरल यूज़ कर लोगे, लेकिन फूड के साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो कोई भी क्लास नाउन अगर आते हैं तो आप किस में जाओगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में। अगर कलेक्टिव नाउन्स की मैं बात करूं, SVPV आप समझ रहे हो ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कलेक्टिव नाउन्स की बात करूं जैसे कि कॉन्स्टलेशन है, जैसे कि स्कूल ऑफ फिश है, बेबी ऑफ गर्ल्स है ना, गैंग ऑफ बॉयज़ है। अगर वो जो गैंग है या बेबी है या फिर वो स्कूल फिश के लिए यूज़ किया, स्टेयर्स ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, तो वो फ्लाइट क्या है? कलेक्टिव नाउन है स्टेयर्स के लिए। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो ये नाउन्स बनेंगे कलेक्टिव, इनके साथ आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके। और जब किसी इंडिविजुअल को ये टारगेट करते हैं कलेक्टिव नाउन में, जैसे कि मतलब अगर मैं बोलूँ द कमेटी हैज़ कम, अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी है, ठीक है, तो या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है आ गई और उसने कुछ डिसीजन लेना, रिसर्च करना है, तो हम उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन मान लो कि वो टीम मेंबर्स अपने आप में एक राय पे नहीं पहुंचे, तो कमेटी आर डिवाइडेड हो जाएगा, राइट। तो जब हम उस टीम को या उस कमेटी को या उस सिंगल ग्रुप को हम एक डिफरेंट मेंबर्स के तौर पे लेंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आएगा आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें काफ़ी गड़बड़ देखने में मिलती है। वेट्स, मेजर्स, अमाउंट और डिस्टेंस, ये जितने भी जगह पर यूज़ होंगे ये हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर लेंगे, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 5000 इज़ अ बिग अमाउंट, हम ये बात करेंगे, आर अ बिग अमाउंट नहीं कहेंगे यहाँ पर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, 10 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स चाहे प्लूरल में है बट आप कैसे बात करोगे? 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। सो वहाँ पर आप बात जो करेंगे वो इज़ की करेंगे, यानी कि आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वॉज कंज्यूम टू ड्राई क्लीन द कारपेट। ऐसा नहीं होगा कि 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वर कंज्यूम, नहीं। जहाँ पे भी आपका डिस्टेंस, मेजरमेंट या वेट या अमाउंट की बात आएगी वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करोगे, आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करोगे। वहीं अगर मान लो मुझे इस तरीके से इस चीज़ को याद करना है, जैसे 5 years हैव बीन पास्ड, इस बात को 5 साल हो गए। अगर मैंने इस तरीके से बात करनी है कि वो मुझे प्लूरल जिसको आप ये बोलोगे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें प्लूरल फीलिंग्स आती हैं, जैसे प्लूरलिटी का एहसास अगर हमें कराती हैं, तो देयर यू कैन यूज़ 5 years हैव बीन पास्ड, तब हैज़ नहीं होगा, बट 5 years इज़ अ बिग डील। तब अगर ऐसे कह रहे हो तो आप उसके साथ सिंगुलर ही लेके चलोगे। ऐसे 2000 रुपीज़ वर चार्ज बाय हिम। अब यहाँ पर जो आ जाएगा, यानी कि जब आप रुपी को यूज़ कर रहे हो एज अ नाउन तो वो आपका आ जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आप उसको एक एक्शन टेकिंग के फॉर्म में या फिर आप उसको डिफरेंट एलिमेंट के पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हो तो वो आपका कैसा चलेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे।
आई होप ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स में जनरली आप लोग वो जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक छोटी सी टेबल बना के दिखाई थी, दे ऑल मैनी स्टूडेंट्स ऑलवेज फील लाइक ओके दिस इज़ जस्ट हेल्पिंग वर्ब और इसको बहुत लाइटली लिया जाता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट टॉपिक। अभी भी आप इसके रूल्स निकालने पर आओ तो कम से कम 100 रूल्स बनते हैं, बट स्टिल आई कवर्ड मोर देन 60 रूल्स विद यू, जो कि अलग अलग लिखे होते हैं और अलग अलग आपको बताए जाते हैं, बट कंबाइंड मैनर में मैंने आपको उसके साथ डिस्कस किया है और वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप लोगों को बहुत आगे सक्सेस दिलाए और ग्रामर में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। डू शेयर विद अस व्हाट डू यू फील अबाउट दीज सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय फॉर नाउ गाइज, गॉड ब्लेस यू।